and then last we will, at the end we will do administrative. Yes, and no, there are foreign policies. हाँ जी जी बेटा. Now come to the point. जी बेटा, point is number 4, social policies of Ayub Khan social policies of Ayub Khan. Social policies, there are 4 main. बेसिकली तो इसके अंदर सब पॉइंट्स 5 बनते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट. पहले पे एजुकेशन या एजुकेशनल पॉलिसीज. नंबर 2, हेल्थ पॉलिसीज. नंबर 3, social policies, health policies, then family laws, and 4th one is, चौथा हम लिख लेंगे फैमिली लॉस के बाद, आसान वाले लिख लें, पॉपुलेशन कंट्रोल. यस बेटा, 5वीं वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज वगैरह. ओके बेटा, आपको एक बात याद रखनी है कि एजुकेशनल पॉलिसीज में बहुत आसान से, सिंपल से, all these points are very easy to explain. इसमें कुछ भी नहीं है. General things are there. There are so many general things in it. Clear? For instance, educational policies. In the educational policies, new schools, colleges, technical institutes. So there were multiple things in it. New schools, colleges, technical institutes were established. Then teachers were hired, new teachers, new curriculum, new teachers, new curriculum. So there were so many things in it, beta. अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, if few people just go through the main points, इसमें all these things are very very general. All these things are very general. अब इसका analysis, you can make the analysis positive. Analysis actually makes the thing positive or negative. Clear? अब इसका पॉजिटिव एनालिसिस अगर आपने बनाना है, मतलब आपके एग्जाम में बेटा, इट इज entirely your choice. If you want to make educational policy successful, you can make, because it was somehow successful, but overall it was a big failure. Like I am making it a failure now. For example, however, these efforts were insufficient. However, these efforts were insufficient for huge, large population. Clear, beta? These efforts were insufficient for large population. ज़्यादा population के लिए it was insufficient. So that was the main agenda, main thing जो कि हमारी आ गई. अब इसके साथ साथ
along with that we have health policies. Beta, in the health policies, everyone, in health policies, new hospitals, new doctors, paramedical staff, all these things were there. Beta, when all these things were there, new staff, new hospitals, new paramedical staff, all these things were there, what happened after that? ये भी एक फेलियर था, नेगेटिव पॉइंट ऑब्वियसली, इसकी भी एक फेलियर का एनालिसिस लिख लेते हैं. हाउएवर, these facilities were insufficient. These facilities were insufficient to fulfill needs of large population. अच्छा, इसका एनालिसिस में और भी आ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, was the life expectancy decreased by this policy? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस डिक्रीज नहीं हुई थी. पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पाकिस्तान के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस कि एवरेज लाइफ ऑफ पीपल इंक्रीज, बढ़ी नहीं, वो सेम एवरेज लाइफ ऑफ पीपल थी. बेटा ये इसको हंसी बंद कर दो. एवरेज लाइफ ऑफ पीपल जो है वो क्या थी? दैट वाज सेम. इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसके ऊपर. तो जब एवरेज लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब है इसकी पॉलिसीज जो हैं, these were failure, these were not sufficient. Is it clear everyone? Is it clear everyone? Okay ji. Now we have the third policies, family laws. Family laws were made by Ayub Khan. Women rights were protected. Women rights were protected, like share in inheritance. What was happening in पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन का जो शेयर था इनहेरिटेंस के अंदर, वो लोग देते ही नहीं थे. वुमेन का शेयर इनहेरिटेंस के अंदर नहीं देते थे लोग. तो उससे क्या होता था पाकिस्तान के अंदर? द कंडीशंस ऑफ वुमेन वर वल्नरेबल. जी, इज इट क्लियर? अब वुमेन रोल इन इनहेरिटेंस जो है वो नहीं था. फिर उसके बाद एक तो शेयर इन इनहेरिटेंस जो है दैट वाज प्रोटेक्टेड. So minimum age of marriage was determined, was 16, clear? 16 years old. Done. इसके अलावा so permission of first wife in case of second marriage. ये पाकिस्तान में पहली दफा वुमेन राइट्स को, मैरिज की पहले ME होता है ना, जब तक शादी नहीं होती तब तक स्वेलिंग आते हैं, जब हो जाती है फिर नहीं आता है. अच्छा जी,
आगे चलते हैं, वुमेन राइट्स हमारे यहाँ पे हो गए। सो इन केस ऑफ सेकेंड मैरिज, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेप था इन, यस, hence yeah, therefore these steps protected women and empowered them and empowered them. वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बेटा दिस वाज एक्चुअली ए गुड स्टेप जी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से था, और लास्ट में है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल इज मिथ इन पाकिस्तान, पॉपुलेशन कंट्रोल इज मिथ इन पाकिस्तान। सो बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, व्हाट वाज दैट पॉपुलेशन कंट्रोल, या व्हाट वाज द एजेंडा इन पॉपुलेशन कंट्रोल। ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो आज भी इतनी ज्यादा मैसिवली इंक्रीज कर रही है, तो सबसे मेन चीज क्या है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें विद द डेवलप्ड कंट्रीज, तो पाकिस्तान पॉपुलेशन का जो रेट है, इंक्रीज रेट जो है, दैट इज ट्रिपल, नॉट डबल, डबल से भी ज्यादा ट्रिपल रेट है हमारा। तो अयूब के टाइम पीरियड में भी पॉपुलेशन रेट वाज वेरी हाई। तो अयूब took steps regarding family planning. Ayub took steps regarding family planning in which awareness was given, clear, in which awareness was given to people obviously। तो रूरल एरियाज के अंदर, जो रूरल एरियाज में रिक्वायरमेंट है, देखें मेडिसिन वगैरह, स्पेसिफिकली पॉपुलेशन कंट्रोल मेडिसिन भी होती हैं आपके, जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी, with the help of American aid, Pakistan provided in the rural areas as well. Clear? So this thing was opposed by Maulvis, ulamas. They stated that this is un-Islamic. However, ulamas believed it was un-Islamic. Ulamas believed that it was un-Islamic, as Allah has promised to give food to everyone. अब इस बेस पे मौलवियों ने कहा जी कि ये जो इस्लाम है, इस्लाम तो हमें कहता है कि बच्चे जो हैं उनको बर्थ जो है उसको नहीं कंट्रोल कर सकते आप, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मौलवी ने इस चीज को कंसिडर किया, एंड दैट वाज द मेन थिंग, तो डोमेस्टिक पॉलिसी कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल बिकॉज पीपल इन रूरल एरियाज they did not want to listen to the instructions of government anymore. Clear? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर करंटली आज भी जो सबसे डोमिनेंट किस्म की, आपने इस्लामाबाद को छोड़ दें लेकिन इस्लामाबाद के बाहर आप चले जाएं तो आपको पता है सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल ओपिनियन किसकी मानी जाती है? मौलवियों की। ठीक है,
उलमास तो बड़ी बात है, यहाँ पे मौलवी की ओपिनियन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर? तो उससे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो कह देते हैं, वो समटाइम्स सही नहीं होता, तो लोग उसको लेकिन मनोवन मान लेते हैं जी, ये दैट इज अकॉर्डिंग टू इस्लाम। क्लियर? तो खैर खुद रिसर्च करने की एबिलिटी नहीं है हमें, तो ये चीजें हैं जी। बेटा सोशल पॉलिसीज हमारी ये होगी हमारी फैमिली प्लानिंग में इसके टाइम पीरियड के अंदर चाबी का निशान था। जो इसके टाइम पीरियड में वो थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, फलाह बहबूदे आबादी के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, फलाह बहबूदे आबादी के नाम से। ठीक है, तो वो इसके टाइम पीरियड में बना था। क्लियर? बाकी हाँ, इसमें मैं अब लिख देता हूँ, साथ में लिखने लगूं मैं। इसमें बेटा आप देखें, एजुकेशनल पॉलिसीज में एजुकेशनल वाज फेलियर, हेल्थ वाज फेलियर, देन सोशल वाज, फैमिली लॉज वाज सक्सेस, और लास्ट में लास्ट सर वाला फेलियर। फेलियर। अब आपकी मर्जी है वैसे हेल्थ और एजुकेशन को, अगर आप पेपर के अंदर आप हेल्थ और एजुकेशन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं कि आप यू कैन से हेंस इट इनहेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड हेल्थ को आपने बताना है या एजुकेशनल को बताना है लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, हेल्थ को बताना है तो यू कैन से दैट इट इंक्रीज्ड या इट डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान। सर इसी टाइम पे लिटरेसी रेट कितना इंक्रीज हुआ था? 1% इसके टाइम पीरियड के ऊपर भी, उस टाइम पे तकरीबन 40-45 के करीब था लिटरेसी रेट हमारा, और अभी 45-46 हो गया था, बस इतना ही हुआ। दैट वाज द डिफरेंस। इज इट क्लियर? पाकिस्तान में लिटरेसी एस्टिमेट करने का तरीका पता क्या है? जो बंदा अपना नाम लिख लेता है वो लिटरेट कंसिडर किया जाता है। दिस इज द क्राइटेरिया टू मेजर लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। मैं लिटरेट हूं क्योंकि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसके अलावा देयर इज नो क्राइटेरिया, नॉट क्वालिफिकेशन और नहीं है। लिटरेसी रेट पे हम हर उस बंदे को शामिल करते हैं जो अपना नाम लिख लेता है। सो कांग्रेचुलेशंस, यू पीपल आर लिटरेट नाउ। पढ़ाई छोड़ दें आगे, हैं? ओके जी। चलें जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5 administrative policies. Administrative policies in the administrative policy there is one main point. There is one main point in the administrative policies, that is change of capital. Very good. Change of capital. Change of capital. Beta, Ayub personally took interest in change of capital. Ayub took interest in change of capital, and he also he shifted it from Karachi to Lahore. Oh, कराची टू इस्लाम, ये मूवी है ना, कराची टू लाहौर। मैंने मूवी क्या बोल दिया, कराची टू इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी जा गई है। अच्छा, तो कराची टू इस्लामाबाद, फिर इसके बाद बेटा कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो शिफ्ट भी किया। इट वॉज ए प्लान्ड सिटी, इट वॉज ए प्लान्ड
there were government offices. Y S जी GHQ close to GHQ तो अभी बना ना, अभी GHQ इधर आ गया. So offices, embassies and other government infrastructure. Okay, what was the benefit of that capital? It's this thing made the administration more efficient because there was a central, that point is the almost the center of Pakistan. It is located at a very safe place, strategically very safe place. तो इसलिए hence this step made administration easier and efficient. Is it clear, madam? Done, everyone? Now we have 7 marks question in it. We have 7 marks question. Yes. Why was why was की विचार करें? Yes. Why did Ayub shift his capital from Karachi to Islamabad? Yes. देखना कराची वालों को ये बुरा ना लग जाए, कराची की बुराइयां शुराइयां हो जाएंगी इसमें, हैं? तो अच्छा बुरे ना करो यार, हम नहीं कह सकते ना ऐसा. ओके जी. सो why did Ayub shift his capital from Karachi to Islamabad? He had two पहली बात- portfolios, commander-in-chief and Yes. Yes, strategic importance. It was strategic importance. ठीक है, strategically safe location थी इस्लामाबाद की और कराची की safe. अच्छा, इस क्वेश्चन का एक टूल याद रखना है कि you have to write answer in comparison. आपने कराची में जो नेगेटिव चीजें हैं और इस्लामाबाद में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं उसका आपस में कंपैरिजन करना है. कराची वॉज अनप्लैंड, मैं लिखवाता हूं पहले. कराची वॉज अनप्लैंड, कराची वॉज अनप्लैंड while Islamabad was planned for administrative purposes. Administrative purposes. Is it clear, Beta? This is the first point. तो एक प्लान है और आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को कैपिटल जब बनाया था तो उसने एक वर्ड भी बोला था उन्होंने कि दिस इज जस्ट ए टेम्परेरी कैपिटल, नॉट द परमानेंट कैपिटल. ये टेम्परेरी कैपिटल है. तो जिन्ना ने खुद बोला था टेम्परेरी है, तो इसका मतलब है देयर वाज नीड ऑफ परमानेंट कैपिटल. तो इसलिए इस्लामाबाद बाद में बना. तो Karachi is located at vulnerable point which could be attacked by sea or cyclone might hit this area. Therefore,
Islamabad was established as it was strategically safe. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर मैडम? तीसरी रीजन क्या हो सकती है, मैं भूल गया हूं, बताना जरा। अच्छा, क्लाइमेट जो है ना, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही मेरी ठीक से? जाइना, अजीन, जोहा, बेटा आपको आवाज आ रही? Yes, sir. ओके, यमीना आपको आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. उधर से ले आओ, दूसरे रूम से उठा दो, इधर साथ वाले रूम। ओके जी बेटा। सो अब बेटा, अगर इफ वी टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास जी क्लाइमेट, हाई क्राइम रेट भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। कराची वॉज ओवर क्राउडेड, यस बेटा, refugees भी यस बेटा। कराची वॉज ओवर crowded and it was, yes, difficult to manage administration and commercial activities in the country. Therefore, Islamabad was established as new capital. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा क्लाइमेट का पॉइंट, बेटा क्लाइमेट वाला जो पॉइंट है, इधर आ जाइए, हाँ इधर। क्लाइमेट वाला जो पॉइंट है, इसको बेटा हम लोग याद रखिए। क्लाइमेट वाला पॉइंट, आपके नजदीक क्लाइमेट इस कराची का अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता, जो इट डिपेंड्स ऑन पीपल। ऑब्वियसली कराची का क्लाइमेट जो है वो मेरे नजदीक अच्छा हो सकता है, आपके नजदीक अच्छा नहीं हो सकता। इट्स बेसिकली क्लाइमेट, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, वो मॉडरेट या थोड़ा ह्यूमिड है, और ये मॉडरेट है, इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो वो बड़ा मुझे लेम सा पॉइंट ही लगता है मोस्टली, कि हाँ देयर आर मेनी अदर रीजंस, कि आप इंडस्ट्रियल सिटी था, यहाँ पे पोर्ट थी, कराची में बहुत ज्यादा बर्डन था। कराची वाज, सबसे बड़ी पॉइंट है, कराची वाज चोजन एज ए टेम्परेरी कैपिटल। यस यस, इज इट क्लियर? तो ये हमारी रीजंस हमारी यहाँ पे कवर अप होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब ये जितने भी अयूब खान ने ये टाइम पीरियड, he introduced many domestic policies in Pakistan and there were many successes of these policies as well. ऐसा है ना, सक्सेसेस भी थे इन पॉलिसीज के। ऑन द बेसिस ऑफ दोज सक्सेसेस, राइट द क्वेश्चन अंडर इट। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। सिंपल क्वेश्चन इज, why did Ayub celebrate 1968 as decade of development
or decade of progress? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अयूब खान ने क्यों इसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट या डेकेड ऑफ प्रोग्रेस जो है वो कहा था कि वो सेलिब्रेट किया था? जी ऑनलाइन स्टूडेंट पहले बताएं। फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर वॉज एट इट्स पीक। एग्रीकल्चर वॉज, yes, at its peak. Write the success, the point which you can explain. Write the point which you can explain easily. Yes बेटा, एग्रीकल्चर के अलावा और क्या सक्सेस थी? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज देयर during his time. Yes बेटा, massive, Ayan, massive infrastructure was built। कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी चीजें बनी थी इसमें? इस्लामाबाद बनाया, स्टील मिल इसके दौर में नहीं बनी। इस्लामाबाद पूरा शहर बेटा, उसने पूरा शहर नया बना दिया आपको, और क्या चाहिए? मंगला डैम किसके दौर में बना? मंगला डैम किसने बनवाया? किसके टाइम पीरियड में? करबेला किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ? तो इसकी वजह से इसको डेकेड ऑफ, वी कैन कॉल इट डेकेड ऑफ डेवलपमेंट और डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। इज इट क्लियर? जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके जी, नेक्स्ट बेटा वी हैव, मैं लिखना छोड़ दूं फिर? Sir, Okay, first person to work for rights for women. डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि सोशल भी राइट्स या सोशल पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यस बेटा, यस, मोस्टली फेलियर। आप इसके अलावा, सोशल के अलावा, वो नहीं लिखा तो बेटा पॉइंट 3 पूरे हो गए, तो इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, ओरल मैंने बता दिया था आपको। इसके अलावा और इसकी सक्सेसफुल पॉइंट आप मिल ही नहीं रहे हमें। Relations with So- other countries grew. growth rate of Pakistan was around 7%. Clear? Which was highest in Asia or world? In Asia, later on in the world as well. जो भी लिखना लिखने, खैर है, चलेगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? There is one more question. Was it justified to celebrate Yes, was it justified to celebrate? Was it justified to celebrate decade of development? Decade of development in 1968. Was it justified to celebrate decade of development in 1968 by Ayub? By okay जी, by Ayub. So explain. अब बेटा अगर आप बात करते हैं कि अयूब खान ने क्या ये सेलिब्रेट किया, तो was that justified to celebrate? Just tell me. No, sir. इसमें दो चीजें आएंगी। In this answer you need to write two things.
सर सक्सेस Yes. इज किस तरह जस्टिफाइड था और किस तरह नहीं? जस्टिफाइड, इंसान की सेलिब्रेशन जस्टिफाइड क्यों होती है? ड्यू टू सर जब वो कोई अचीवमेंट हासिल कर ले। सक्सेस। और यस, व्हाई इट वाज नॉट जस्टिफाइड? Not justified due to, yes, failures. Now you have to write at least, if you want to support के ज्यादा not justified थी, तो you need to write 2 success ratio 3 failures, but you need to link all these points with the word justified and not justified. If you want to support that this celebration was justified, so then you can write about 2 aspects, 3, yes, agriculture, industrial, yes, growth rate, family planning में अगर आपने positive बनाना है, you can make all these things. Yes. Is it clear everyone? 2 और 3 का मतलब बेटा 2 paragraphs ऐसे होने चाहिए। अगर आपने कहना है कि ये मोस्टली जस्टिफाइड था, अयूब खान का डेकेड ऑफ डेवलपमेंट मनाना, ये सेलिब्रेट, और अगर आपने ज्यादातर ये कहना है कि इट वाज नॉट जस्टिफाइड, तो आपने 3 पैराग्राफ फेलियर वाले लिखने हैं, मतलब उसकी पॉलिसीज के फेलियर वाली पॉलिसीज 3 लिखनी है, 2 सक्सेस पॉलिसीज। क्लियर? यस, फेलियर में इट वाज ए फेलियर। ओके, पैराग्राफ, because it ended right after the Ayub and it just gave power to Ayub Khan, nothing else. Odo Abdo भी नेगेटिव में लिख सकते हैं। जी बेटा, अब आपको समझ आ गया नूर? इज इट क्लियर? 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं। अगर आपको बेटा लगता है कि ज्यादातर अयूब खान की सेलिब्रेशन इट वाज जस्टिफाइड टू सेलिब्रेट, मेरे ख्याल में तो इट वाज जस्टिफाइड, क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा हाई था कि दैट इज व्हाई इट वाज जस्टिफाइड। तो मैं तो इसकी फेवर में जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी फेवर में जाए। बिकॉज ही was a dictator and he took all the powers. Clear? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक बेटा एनी क्वेश्चन?